Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. और आज मेरी चेयर में बहुत इसकी आवाजें आ रही हैं. Can you guys hear it? It's irritating me. लेकिन टाइम नहीं है कि मैं चेयर Now चेंज. that you say it, तुम कह रही हो तो आवाजें आ रही हैं वरना नहीं. राबिया बहुत ब्राइट लग रही है. I'm thinking कि मेरा थोड़ा सा डल आ रहा है, लेकिन अगर अब मैंने इसको छुआ ना लाइट को और कुछ किया तो राबिया कि नहीं stop, don't touch anything. Yes. But I like the yellow. लग रहा है like मेरा yellow background ना ट्रांसफर होके तुम्हारी शर्ट में आ रहा है. वो वीडियोस में नहीं होता यहाँ से वहां जाने वाला, वो ऐसा कूल लग रहा है. You. हाँ. Snack. Yeah. क्या हाल चाल है आपका? वीकेंड कैसा गुजरा आपका? मैंने टॉप गन अभी तक नहीं देखी है. मैं आपसे नाराज हो गई हूँ. आपने रेव रिव्यूज के बाद, इतने एक्साइटमेंट के बाद कि मैं भी जा रही थी. I went specially हम 10-15 का शो देखने गए. And can you believe it? पूरा बुक था और सिर्फ सामने की रो अवेलेबल थी. अब टॉप गन में सामने की रो में तो नहीं बैठ के देखूंगी. सॉरी. I just know कि I messaged her. She said I'm going to watch. फिर जवाब ही नहीं आ रहा. भाई देखी कि नहीं देखी, जवाब ही नहीं आ रहा. फिर एक फिर तो रुखा सुखा सा नहीं, मैंने नहीं देखी, कोई जवाब ही नहीं मिला. मतलब मैंने कहा ठीक है मैं मत देख. भाग रही थी भाई, उस दिन बहुत बिजी दिन था, हम भाग दौड़ रहे थे इसलिए. राबिया जब कोई बहुत ज्यादा ये बोलता है ना बहुत बिजी तो लोग इम्यून हो जाते हैं सुन के. तो अब आप मत कहा. मुझे ये जावेद जबान ने बात बताई थी. He had said don't say I don't have time. You can make time if you have time. Because I was saying आप इतनी सारी किताबें कैसे पढ़ लेते हैं. He said because I've told myself I have to make time. तो इसलिए. So starting before the review, I also have started to make time. This is a book which is by a neurologist at the Afan University called Saad Shafkat, but it has nothing to do with neurology. It's actually a thriller. अभी मैं कराची गई थी तो मैं लेकर आई. इनकी एक किताब छप चुकी है, Breath of Death, and this one, Rabia, he has signed for me and he has said to Shazia, hope you enjoy this tale of tussle and scuffle. तो अभी राबिया ने मैसेज किया कि मुझे अभी 10 मिनट है तो मैंने जल्दी से, because I've been wanting to start this over the weekend, और नहीं तो मैंने कहा मैं पहला चैप्टर पढ़ती हूँ. I think it's like the first episode of a drama. You decide whether you want to go and watch the second one or not. तो अभी राबिया ने कहा था कि मुझे थोड़ा टाइम है तो मैंने कहा no, I have to now. It was so interesting that I wanted to flip. मैंने कहा अच्छा रुक जाओ, तो मैंने सबसे पहले तो ट्वीट कर दी. I can't explain it. There's a mood to it. There's a mood to the whole thing. और मैं बिल्कुल spoiler नहीं देना चाह रही because पहले chapter में भी मैं spoiler. I can spoil your fun, your the flavor of the first chapter or the flavor of the book if I tell you. But I think if you are living in Karachi, you can definitely start watching this. And again मैं इसका explanation नहीं दे सकती क्योंकि उन्होंने जो सुबह जो दिखाई है और जिस तरह वो रोडों में से वो जा रहे हैं, जो नाम लिए उन्होंने रोडों के, तो it threw me back nostalgically to मेरे अपने रास्ते जो मैं सुबह सुबह कराची में ले रही होती थी कहीं पहुंचने के लिए. So I won't say anything more, but it's a thriller and the author has told me that it is going to be an out and out thriller. So if you're looking for a thriller, then go watch. And yeah, that's it. I will try and give you a review. It's Rivals by Saad Shafkat, and he is a doctor. And Kamla Shamsi has given a review here. Shafkat combines the drama of the emergency room with a heady mix of office politics and a sensational media and sexual intrigue. चलिए आपने मुझे इंट्रीग कर दिया. I might go and pick up the book and read it. Yeah. अच्छा जी, हमारे पास ड्रामे कौन कौन से हैं आज? वी हैव फ्रॉड, मेरे हमनशी, संगीमा, इश्क़ राह, मेरी हमसफर. Am I forgetting anything? मेरे पास 5 आए हैं. ठीक है, we have 5 dramas. Okay, which one do you want to start with? Fraud? Before we start, Rabia, I know we are running short, लेकिन मैंने आपको कुछ प्यार भरे मैसेजेस भेजे थे अपने WhatsApp पे. वैसे मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं होता, जो आप कह चुकी हैं बहुत दफा, लेकिन आप पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूं. कर देती हूँ अपनी स्टेटमेंट. आई रिफ्रेश माय स्टेटमेंट. भाई आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो आप देख लें, मैं मुझे देखने की जरूरत नहीं है ना. आप डिस्कस करें, मैं जवाब दे दूंगी. I don't have to see it. एक मकसद है कि मैं चाह रही थी कि आप पढ़ें, लेकिन कोई बात नहीं, शाजिया पढ़ देंगी मैसेजेस. मैं डबल काम क्यों करूं जब मैं यहाँ सुन रही होंगी तो फिर. It's okay, you guys can reply. These 3 messages are particularly for Rabia. Shazia has gone and replied to them because Rabia was too busy to read the comments. She does try and read, I know. तो मैंने भेजा था कि राबिया की मंडे मॉर्निंग एडिट में करवा दूंगी ये, तुम्हें पता है ना. सब एडिट करा दी कि फिर मैं नीचे कमेंट्स में जाके लिखूंगी कि वो चीज बात एडिट हो गई है क्या मेरा. तो एनीवे, तो ये 3 मैंने भेजे थे क्योंकि एक्चुअली व्हेन आई वेंट टू सी कमेंट्स वो सब राबिया के लिए ही कमेंट्स आए थे इस दफा. Rabia, you want to know a fun fact? This is by Mehreen.
Every day after watching dramas, my friend and I gossip about all the dramas. Like you, Rabia, I also get equally excited when I talk about the episodes. Fun fact is that a few days back, seeing my way of speaking, my friend told me that I talk and look almost like you when I give every detail of an episode to them. She even calls me Rabia mini version. Thank you so much. शुक्रिया बहुत बहुत आपका मेहरीन. I am honored, I am touched. And शाजिया आपका शुक्रिया कि आपने ये comment choose किया. मैं comments पढ़ रही थी, promise मैं ये वाला miss हो गया. I've been reading comments on दोबारा and I've been reading comments जो लोग बोल रहे थे कि राबिया हम आपसे बिल्कुल relate कर पा रही है. मैं sorry जवाब नहीं दे सकी because मैंने नहीं दिया. Maybe I should, मेरी गलती है. But I am reading your comments. That's not fair. I can. She's going to edit the other stuff that I said. All the nice things I said, she's going to edit. Rabia, okay, this is from Rabia Zaid. Rabia, I really admire you. I want to be like you, your way of speaking, your voice, your calm personality. Your calm. इसको highlight करके ना हम एक वो लगाएंगे. वो कौन सा होता है? Keep calm, be like, keep. क्या होता है? What is that poster? No, I think she has recognized me completely, perfectly well. मैं काम होती हूँ जहाँ मुझे जरूरत है. ऑफिस में काम होना है तो I'm getting the work done. Hello. I think her name is also Rabia, so I think she has this mental telepathy with you, and for some reason she thinks you're very calm. I'm not calm. Shazia, I'm not a calm person. I'm energetic. You can say that, right? I'm hyper. Full of energy. I'm full of life. You should say that. Mashallah, mashallah. देखिए बोरिंग आप लोगों की जिंदगी कितनी बोरिंग होगी अगर राबिया नहीं हो. आप सोचें कितनी बोरिंग होगी. सोचें. Shazia does not seem to agree. Shazia is like ना ही हो तो बेहतर है. नहीं मैंने कुछ नहीं कहा. ऐसी अपनी तारीफें कराने के लिए आप मेरे मुंह में इतनी चीजें डाल रही है कि मैं बोलूं कि नहीं राबिया नहीं. How can you say that? Your facial expression से देखिए ऐसी दोस्ती होती है. Now you understand जब मैं शाजिया की bashing करती हूँ, शाजिया से disagree करती हूँ because we have this kind of relationship we can say to each other. Yeah, like I called her on Thursday or Friday. I knew that for some reason I knew that maybe she wanted me to call. She was feeling down. लेकिन ना मेरा फोन उठाया ना मुझसे बात करी. जाके देखो मिस्ड कॉल में तुम्हारे मैसेंजर में होगा. Anyway, चलो next comment from Mila. Pramila said, Rabia ji, how was Nan? Says नाराज हो मुझसे. Just fan of this dialogue, and I love you that you also caught up. And then she has given you some smiley faces and hearts. So I just wanted to give a shout out कि राबिया ने बड़े दिल से वो रिव्यू किया था इश्किला का और लोगों ने बड़े दिल से आपको कमेंट्स दिए थे उसके ऊपर. मेरी तरफ से दिल से माफी for not replying back to these. पिछले 2 दिन मेरे बहुत बिजी गुजरे था. मैं क्या करूं? I'm really sorry. But there was something going on personal friends जिसकी वजह से मैं नहीं कर सकी. Usually I do, but I had read जो दोबारा के उस वक्त फौरन अगले 2 दिन तक कमेंट्स आ रहे थे. मैं पढ़ रही थी और मुझे लोगों ने ये भी कहा था कि राबिया we could see कि आप इतनी we could completely relate to you, and I was like शुक्र है I'm not the only one who's thinking like that. So शुक्रिया बहुत स्पेशली आप सबका जिन्होंने इतने खूबसूरत मैसेजेस भेजे हैं. I will go and reply individually. आप लोगों ने मुझे बहुत शर्मिंदा कर दिया. शाजी आपने तो बहुत शर्मिंदा कर दिया मुझे. So मेरी तरफ से I'm really sorry. And शुक्रिया बहुत. I love it when I do this to her. Okay, anyway. See, I also add something to your life, right? If I was you do. How can आप लोग भूले नहीं क्या हुआ था मेरे साथ आर्टिकल पे. प्लीज याद रखें क्या हुआ था आर्टिकल पे मेरे साथ प्लीज. उसके बाद भी डिटेल मैसेज नहीं आया. मैं एक्सपेक्ट करी थी उस बात को अच्छा सा हुआ गया. मुझे मतलब मुझे मैसेज किया कि कितना अच्छा आपने लिखा है. तो और लोगों ने मुझे डीएम किया, मैंने अपने स्टोरीज में शेयर किया. शाजिया की तरफ से कोई मुझे अप्रिसिएशन नहीं आई. भाई हम भी बच्चों की तरह जब हम कुछ अच्छा लिखते हैं. 4 दफा रात को सोने से पहले फिर कमली का रिव्यू शेयर किया है शाजिया ने हर जगह. मतलब ये तारीफ ही होती है हर जगह शेयर करना. वो आपकी जॉब है. आई वांटेड अ पर्सनलाइज्ड नोट कि राबिया तुमने अच्छा लिखा है. अच्छा चलो हो जाएगा. वो भी हो जाएगा. और लिखो हर हफ्ते लिखो एक आर्टिकल हो जाएगा. द मस्तम का रिव्यू नहीं आया अभी. देखो कायदे आजम जिंदाबाद आ रही है. अभी रिव्यू आना है. नहीं द मस्तम में मेरी गलती हुई एंड दैट्स व्हाट आई रियलाइज एंड दैट्स व्हाई मैं कमली आती साथ लिखा मैंने. और इंशाल्लाह बाकी सबके भी आपको अगर आप नहीं है तो फौरन आपको मिलेंगे. राबिया लिख के देखिए. ये आपस की बात है शायद राबिया एडिट कर देता मस्तम पे. इमरान अशरफ ने कहा था खुदा के वास्ते रिव्यू मत करिएगा. 1 हफ्ते तक उन्होंने कहा था. 1 हफ्ते तक. तो या चलो एनीवे लेट्स गो. ओके जी. हाँ जी हमारे पास. सो वी स्टार्ट विद फ्रॉड. यस ओके फ्रॉड. इंटरेस्टिंग वाकयात हो रहे हैं मुझे. यस या वेरी इट वाज रैप्ड अप वेरी फास्ट बिकॉज़ हमें तो पता था कि फ्रॉड तो है
तो वी वांटेड टू सी आगे स्टोरी कहाँ जाएगी. They were really smooth. जिसको कहते हैं ना एक ड्रामा, there's a show that used to come here called The Hustle, जिसमें एक्चुअली जो हसलर्स होते हैं जो इसी तरह फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, और बिल्कुल इन्होंने तीनों की तीनों ने ऐसा रैप अप किया है इसको, एंड वेरी क्लेवरली डन, नो लूज एंड्स लेफ्ट, एवरीथिंग फ्रॉम कैंसलिंग द वलीमा टू डिसअपियरिंग, वो जो घर लिया था, ज्वेलरी ले ली, 20 लाख ले लिए. आई लाइक्ड इट, इट वाज अ स्मूथ जॉब. व्हाट डिड यू थिंक? I think it was so interesting शाज़िया, जब उसकी देखिए शुरू से जब उसकी सास उसको बोलती है जेवर दे दो, और मैं सोची थी यार इस सिचुएशन में कोई भी लड़की हो तो वो क्या कहेगी, उन्होंने इतना नेचुरली उसको किया. अगर वैसे ना भी हो तब भी अगर आपकी सास आपसे ज्वेलरी मांगे ऐसे प्यार से तो आप इतना तो नहीं कर सकते, कितना बुरा लगता है. तो कितना उन्होंने क्लेवर ये गेम खेली. देन पूरा डेथ की बात, और वो द ओनली थिंग जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी वो के जब फ्यूनरल पे नहीं लेके जाते और जो जस्टिफिकेशन उन्होंने दी थी वो मुझे थोड़ी सी लगी कि उसको बेहतर कर सकते थे, और उस पर डेफिनेटली शी शुड हैव टेकन अ स्टैंड मे बी. बट इवन देन हाउ मच कैन यू पुश एक नई नवेली दुल्हन जिसको एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, वो कितना पुश कर सकती है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो सही थी. और चेक बुक वाली बात तो उसको कितने प्यार से उसने बोला कि तुमने मेरी सारी जायदाद करनी है तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ. मैंने कहा अबे यार क्या सही सारे. अच्छा, और अगेन राबिया यू आर राइट कि इन सब चीजों पे, लेकिन एहसान खान AK तबरेज इतने प्यार भरे एंड नॉट गोइंग ओवर द टॉप, बिल्कुल लेवल पे उसको हर चीज में समझा रहा था, एंड वो जहां भी हल्का सा भी डाउट शिकवा आता ना उसके दिमाग में, वो उसको कवर अप कर रहा था फौरन. फ्रॉम द सुहाग राजा वो आके बैठा था, उसने कहा कपड़े चेंज करो, देन ही नोटिस, ओके, बिकॉज़ आई थिंक दैट एपिसोड यू हैड मिस्ड, मे बी यू सॉ इट लेटर. तो ही नोटिस कि मैं बहुत तेज जा रहा हूँ, तो he stopped himself, he sat down, he talked to her, प्यार भरी बातें करी. So actually he's played it really subtly over here, and I love that about him. But going back कि अब मैं सोच ये रही थी शाज़िया कि अगर वाकई रियल जिंदगी में ऐसा हो रहा हो तो लोग कैसे डिसाइड करें कि भाई ये सही है या गलत. तो भाई बेसिक रिसर्च, सबसे पहले रिसर्च जो उसके बाप ने नहीं की, सिर्फ उसकी दौलत पे चला गया. उसने जाके कोई आसपास भाई कौन है, कहाँ से आए हैं, कुछ तो मालूम करें. तो आई थिंक इन सब चीजों से मुझे ये हुआ कि जितने लड़की वाले या लड़के वाले भी हैं, you must do your research, you must ask about the boy, you must ask about the family. 2-3 आपके कोई ना कहीं से जानने वाले, आजकल का जमाना ऐसा है हर कोई हर किसी को कहीं ना कहीं जानता है, तो कहीं ना कहीं से आपको पता होना चाहिए. मुझे लगता है ये एक बेसिक चीज थी जो वहां मिसिंग थी. उन्होंने बस उसकी शानो शौकत और दौलत देखी और उस पर उन्होंने, और ये कि उस ग्रुप में तो कोई भी हो सकता है. बट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, वेरी नाइसली एग्जीक्यूटेड, कि इन द वे कि हम लोग बिल्कुल नहीं अपनी नजरें इधर से उधर उठा सके. अच्छा, जब उसको लेके चला गया तो रात को फिर कॉल करता है. मैं समझी कॉल नहीं करेगा, 2 दिन तक वो कॉल शुरू में करी. So they are waiting कि 15 दिन 20 दिन गुजर जाए ताकि वो अच्छे से भाग जाएं. ये लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सके. और जब उनपे बॉम्ब ब्लास्ट हो तो they are not able to do anything, Yes, बिल्कुल क्लियर अप के घर वर क्लियर अप कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, सारे सबूत वो मिटा देंगे, सब कुछ. So brilliantly executed, and I'm really enjoying watching it. Fraud अभी तक. Yes, and they accompany the music also. जब वो 15 दिन गुजर जाते हैं, वो आके उनके अब्बा नीचे, I actually thought वो अगला दिन है, but then they had changed the music. तो मैंने कहा ये म्यूजिक क्यों आ रहा है इस तरह का, अगर ये तो everything is still normal. And then वो अपनी आंखें की कहती हैं कि 15 दिन गुजर गए. So yes, अब मुझे बताओ कि इनकी कहानी कैसे मिलती है, शान की, ये जो मिकाइल जुल्फिकार है, इनकी कहानी पता आगे पता चलेगा, अभी नहीं पता. I am just curious to know. वही होगा ना, ये मजबूरी में शादी करेंगे, उसकी सुतेली माँ को वो लड़की चाहिए जो बिल्कुल अंडर कंट्रोल हो, तो वो इसको लेकर आएगी जिसकी ऑलरेडी एक तलाक हो चुकी है, जो ऑलरेडी घबराए हुए हैं, समथिंग लाइक दैट. बट इट्स ओके, आई एम वेटिंग टू सी के क्या हो रहा है. इट्स जस्ट आई एम जस्ट सैड टू सी. अब सैड या क्या, इसका हल क्या होगा कि अगर इस हालात में किसी लड़की को डिवोर्स लेनी हो तो वो कैसे ले. हाँ, ये मेरा भी सवाल था. बट आई एम होपिंग आई थिंक दे विल सेंड द डाइवोर्स, और डाइवोर्स से ही शायद पता चलेगा. दे विल सेंड द डाइवोर्स पेपर्स. चले नाइल बेटा, आप वापस फारिग फ्री हो चुकी हैं वो, लेकिन आई डोंट नो इफ ही इज, बिकॉज़ ही इज बिकम सो बिटर इनसाइड नाउ. बट आई एग्री विद हिम, इतनी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं थी. आई स्टैंड बाय व्हाट आई सेड इनिशियली. या ठीक है जी, वी गो टू मेरे हमनशी. Yes. Do you think she has become a little soft towards Zaraksai? मुझे भी काफी हैरानी हुई थी, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा पहले भी था. जब उसने हाथ काटा था, वो भाग के लेकर आई थी. आई थिंक वो चिढ़ इसलिए जाती है जब दरअसल उसकी ना
आजादी को थ्रेटन करता है। बट आई वॉज अ बिट सरप्राइज कि वो उससे बड़े अच्छे तरीके से पूछती है, हाल पूछती है, खाने की टेबल पे भी उसको ऑफर करती है। आई वॉज टेकन अबैक, यू नो। एंड दरअसल सही भी जरा सॉफ्ट हुआ, क्योंकि जब उसने फोन किया तो रो रही थी, जब वो रो रही थी फोन पे तो वो परेशान हो गया था। उसके बाद तो उसने वापस जवाब दिया। कुछ मुझे हम तुम वाला किस्सा लग रहा है ये रमशा और उसका, वो ऑन द फोन, तब आई थिंक वो परेशान हो गया था। I don't know. I feel he's very करख्त, उसके दिल में कुछ नहीं है। अच्छा, what I want to talk about, अब तक मैं episodes, because मैं जल्दी देख रही होती थी, मैं 1.5 की स्पीड पे देख रही थी वेरी ऑनेस्टली। कल इस वीकेंड पे फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ड्रामा जो है वो नॉर्मल स्पीड पे देखा। एंड आई एम सॉरी, ह्यूज अपॉलॉजीज, मुझसे एक्सेंट बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं कंप्लीटली आई वाज पुट ऑफ एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये एक्सेंट डालने की क्या जरूरत थी। उसके बाद शाजिया मैंने सोचा ओके इस मसले को हम कैसे हल करें। सो आई कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ माइन, गुलाले, आई एम मेंशनिंग यू, नरमीन, हेलो, आई एम मेंशनिंग यू। These are my friends जो that was a good move by the way. केपी से बिलोंग करती हैं, एजुकेटेड है, उर्दू बहुत अच्छे से बोलती हैं, पठान है, और मैं इनके साथ बहुत अरसे तक मेरा ताल्लुक रहा है इनसे और बहुत अच्छी दोस्त हैं। मुझे इनका एक्सेंट कभी ऐसा नहीं लगा, फिर भी मैंने सोचा चले वो शायद एक्सेप्शन हो सकती है। मैंने फिर उनको कॉल की, मैंने मैसेज भेजा गुलाले को, आई वुड लाइक यू टू गो एंड सी दिस ड्रामा एंड प्लीज टेल मी कि ये जो ड्रामों में ये पठान एक्सेंट ये जो लेकर आते हैं ये कितना सही कितना नहीं सही है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली शाजिया, उसने कहा कि मेरे और जो मेरे साथ लड़कियों के आप एक्सेंट सुनती हैं तो आपको सही लगता है क्योंकि हमें उर्दू आती है, तो हमें उर्दू बोलनी आती है, तो आपको हम जब उर्दू बोलते हैं तो वो एक्सेंट नजर नहीं आता बिकॉज वी आर फेमिलियर विद उर्दू। बट दोज पीपल जिनको उर्दू नहीं आती है जब वो बोलते हैं तो उनमें आपको एक्सेंट नजर आएगा। बट शी सेड कि जिनको उर्दू टूटी फूटी आती है उनको तो उर्दू आती ही नहीं है, तो उनका तो बोलना ही मुश्किल होता है उर्दू। सो इट्स लाइक ईदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, ठीक है। सो इफ यू नो उर्दू you will not have accent or you will not have this thick accent. And then she said also बहुत ज्यादा ऑफ है, शायद ड्रामे में वो उसको एग्जैजरेट या उसको वो करने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज नॉट हाउ हमारा एक्सेंट होता है। सो मैं यही कहना चाहती हूँ ड्रामे में तमाम लोगों को, अगर आप ये कर रहे हैं तो प्लीज खुदारा अपने ड्रामे अपने प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च कीजिए, प्लीज मेक श्योर ऐसा नहीं, क्योंकि एज ऑफ नाउ I am completely off and I मुझे नहीं पता, या तो फिर किसी एक ऐसे हिस्से क्या एक्सेंट है जिससे हम फेमिलियर नहीं है तो फिर आप उस जगह का मेंशन कर दें कि केपीके में या इस जगह पे पाकिस्तान के इस हिस्से में इस जगह से ये बिलोंग करता है और यहाँ पे ये एक्सेंट होता है, या तो आप ये कर दें। हिबा इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, हर एक्सप्रेशंस, हर डायलॉग्स, हर बॉडी लैंग्वेज, द ओनली थिंग दैट पुट्स मी ऑफ एंड completely overshadows everything that she's doing is her accent. I am saying this with huge apologies for अच्छा फिर उसने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली शाजिया, उसने कहा दियारे दिल वो ड्रामा था जो वहां हुआ था, उनमें से किसी का भी एक्सेंट नहीं था एंड इट वाज वन ऑफ द, अब मुझे भी जितना याद आ रहा है नहीं था, उस्मान खालिद भट्ट का नहीं था, वो तो वहीं पे होते थे, उनका जो कैरेक्टर था, उनके जो साथ एक और होती उनकी बहन का नहीं था, उसमें हरीम का कैरेक्टर था, उसमें अली रहमान का कैरेक्टर था। तो भाई क्या जरूरत है एक्सेंट लाने की अगर आप लोग नहीं कर पाते हैं, प्लीज आप लोग। Here's my take. I heard everything you said and I agree with what you said and I think it was a great move to call up Gulale and Narmeen and ask them because बाकी हम भी नहीं, इसलिए मैंने जब देखा था मैंने कहा छिपा मत करना, सिर्फ गुलाले को कॉल किया था। Okay, but ठीक है, गुलाले को कर लिया था। So the point, और मैंने इसीलिए कहा था कि I'm not sure, so I'm not going to comment on it क्योंकि मैंने ये नहीं किया what you have done. What I do want to say is that वहाँ जाना चाहिए, अगर आप उन लोगों को represent कर रहे हैं, उनकी कहानियां represent कर रहे हैं, तो आपको जाना चाहिए वहाँ, लेकिन then you need to be prepared. जैसे आजकल मैं सुन रही हूँ माशाल्लाह कि actors workshops करते हैं, उसी तरह राबिया जब My Fair Lady हुआ था सिंगापुर में, I had interviewed the lead actress and she said that I went through speech therapy for the role. Yeah. So you have to employ a speech therapist who will actually help the cast come to that perfection limit. Perfect भी नहीं हो तो हमें नजर तो आए कि अच्छा थोड़ा बहुत है। संगे माँ में भी people have accents, लेकिन संगे माँ में, और मैं कल इसीलिए नोटिस कर रही थी to compare the two. Obviously वो अलग लोकेशन है, अलग है, उनका एक्सेंट फर्क होगा, लेकिन वो काफी सही बैठ रहा है as far as I. Yeah, it's a little bit.
Because it's a little bit. अब देखिए उस जहाँ के रहने वाले उन्होंने ही बोला कि अगर उर्दू आती है तो उर्दू का नहीं होगा, कम होगा। जैसे अगर मैं अंग्रेजी के एग्जांपल लूं, हम में से जो जिनको अंग्रेजी बहुत अच्छी आती है वो बहुत अच्छे से अंग्रेजी को उसी, जिनको नहीं भी आती, अगर मेरा एग्जांपल ले लें तो यस मैं बोल रही हूँ, मेरी कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन गलत होगी लेकिन इतनी भी गलत नहीं होगी। इट विल बी समवेयर इन द मिडल, यू नो। सो हम मॉडरेशन की बात करें, जो शाजिया संगे माँ से कंपेयर करें, इसमें तो इतना ज्यादा एक्सेंट है, इतना ज्यादा एक्सेंट है। I'm sorry, it's just I was just very sad yesterday. मुझसे वो देखा नहीं जा रहा था. So do it. I wouldn't say that don't do it, but I would say that please get professionals to help you to do it right, because it's a lovely project. I'm really enjoying it, so I don't want this to bring it down. Acha ji, before we go on to another negative point, or should I go on to another negative point? समझ नहीं आ रहा. Negative पे आ जाओ भाई, मुझे आयमा समझ आ रही. क्यों आपने फिर उनको इतना ग्रे कर दिया, इतना ब्लैक कर दिया है कि समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है यहाँ. Why is she so toxic? What is, and then she's so suffocating. वो फोन कर रही है हादी को, तुम घर पर नहीं हो, तुम कहाँ हो? And not just Aima, a lot of girls now that you are portraying in dramas, जिनकी मंगनी हुई भी है या जो interested है, आप उनको इतना desperate क्यों दिखाते हैं? Can the girl not pick up that the guy is not interested in you? But it's not fair to her. Why did he lie to her? उसने झूठ क्यों बोला उससे? वो ये तो मतलब एक स्ट्रेस की बात है ना, वो झूठ बोल के क्यों जा रहा है? अब जब उसका रेड फ्लैग या रेड सिग्नल भी उसको नजर आएगा कि उस लड़की में इंटरेस्टेड हो रहा है, तो वो तो थोड़ा बहुत तो मैं समझती हूँ ऐसे रिएक्ट करेगी, वो बोलेगी तुम मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो, क्यों बोले जा रहे हो? सो बोल दिया ना झूठ, आप घर आके वापस अपनी बेइज्जती क्यों कर रही हैं बाय कॉलिंग हिम अप? वो he doesn't want to be connected. तो नहीं तो कन्फ्रंट तो करे कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, कन्फ्रंट तो करना चाहिए. वो शुरू से इंटरेस्टेड नहीं है उसके अंदर, so I think she should take a step back. नहीं तो उसको क्या पता कि इंटरेस्टेड नहीं है? Hadi has been giving her very mixed signals. Hadi has not, in fact, more positive than negative. So I'm sorry, Hadi. I don't think so. मुझे तो लगता है कि शादी कर रहा है फिर Hadi उससे, अगर उसको नहीं इंटरेस्टेड. वो गलती कर रहा है ना, वो गलती कर रहा है, वो अम्मा अब्बा के दबाव में आके कर रहा है. अम्मा अब्बा के दबाव में नहीं, वो खुद अपनी मर्जी से कर रहा है. There is no pressure on him. शुरू में उससे कहा था ना, ही वो से कि नहीं अभी मुझे पढ़ना है, अभी नहीं करना. शादी से मना नहीं किया था उसने, रिश्ते से मना नहीं किया, तो उसने शादी में डिले की बात की होगी. वो तो शुरू से उसको हिंट्स दे रहा है. Really? Didn't he say कि मैंने कभी उसको इस नजर से देखा नहीं, तो उन्होंने कहा फिर अब देख लो. चलो मे बी मैं गलत हूँ, मे बी मैंने मिस किया, बट द फैक्ट दैट कि वो शादी कर रहा है, एग्री कर गया है, इट्स अ कमिटमेंट एंड ही शुड लिव अप टू इट. और उसके बाद उसका इधर उधर होना और उसको अटेंशन ना देना, उसको इग्नोर करना, सॉरी वो नहीं बनता है. सो इसलिए मुझे वो इतना ज्यादा नहीं लगा. मुझे लगा कि वो एक ठीक है, ये हो रहा है, एंड मे बी आई वाज एक्सपेक्टिंग इट आल्सो, क्योंकि ये होगा ही ऐसे. Okay, I'm finding her very annoying. Agreed. He should not have said yes to the शादी. चाहे दबाव में ही हाय, किसी भी आय नहीं करना चाहिए था. लेकिन मुझे उसका कैरेक्टर पे सिंपैथी नहीं आ रही है, आयमा के कैरेक्टर, बिकॉज़ वो इतनी ज्यादा आनी भी नहीं है. You are not required to sympathize with her because वो नेगेटिव कैरेक्टर है. तो सिंपैथी तो इतना हाँ, थोड़ा सा अग्री कर सकते थे ना, बिकॉज़ उसके ऊपर तरस तो आना चाहिए, लाइक यू आर सेइंग कि उससे कमिटमेंट है लेकिन नहीं आ रही. अच्छा जी, मुझे एक पॉइंट ये भी करना था कि खजिस्ता, यू नो, व्हेन शी स्पोक अबाउट हिम, किसको पता चला कि हसन ने अपने आप पे सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, एंड शी सेड कि मर्द को इतना कमजोर तो नहीं होना चाहिए. सो आई जस्ट वांटेड टू पुट अप अ रेड फ्लैग ऑन दिस सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है. कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो जिस जगह से आई और जिस तरह वो लोग मर्द को व्यू करते हैं इस मे बी डिफरेंट, एंड दे एक्सपेक्ट कि मर्दानगी का ये एक एक्सपेक्टेशन है, बट दिस इज the construct that we are trying to break down right now. कि मर्दानगी का ये मतलब नहीं है कि you cannot sometimes need help or reach out for support. तो ये डायलॉग थोड़ा सा आप इसको ट्वीक कर सकते थे and bring up something new. मुझे ये बताइए कि हसन की अपब्रिंगिंग में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है. वो एक केस है जिसमें दिखा रहे हैं कि जब फैमिली में बच्चों को सही अटेंशन नहीं दी जाए तो ऐसा हो सकता है. उसके अपने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं और वो गलत टाइम पे गलत बातें भी सुन लेता है. और वो अब उस स्टेज पे पहुंचे, जैसे उसने अपने भाई की बात सुन ली जब उससे कहता है कि माफी मांगो, तो हादी कहता है उसे माफी नहीं मांगनी चाहिए. जो हादी की बात बिल्कुल सही थी कि इससे मेरा भाई कोई ऐसा स्टेप उठा सकता है जो उसके लिए आगे जाके बहुत गलत हो, लेकिन उसने उसको सुन लिया तो वो बिल्कुल उसने नेगेटिव में लिया कि भाई तो मेरे अगेंस्ट है. तो थोड़े अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी हो रहे हैं. And yeah, so but why did the mother have to give in to? Because actually देखो, parents जब ये करते हैं ना, she gave in.
शी सेड भाई वो बार बार कह रहा था तो मैंने इससे माफी करवा दी क्योंकि वो तो नहीं छोड़ता. दिस इज नॉट द वे टू डील. एंड इफ ही हैज बीन डेल्ट विद लाइक दिस थ्रू आउट, क्योंकि शुरू में अपनी नानी के पास छोड़ दिया था, आउट ऑफ दैट गिल्ट शी इज बीन डूइंग दिस. तो अब वो चढ़े एंड यहाँ तक भी बात नहीं रुकेगी बिकॉज ही हैज दैट स्पीकर एंड ही इज गोइंग टू डू समथिंग विद दैट रिकॉर्डिंग दैट ही हैज. So unfortunately, don't give in to your children. That's what they're showing. So I'm glad that they're showing this change. I think help, professional help would have been much better. Yes. Attention to him would have been much better. Telling him that he's talented and he's important and उसको self उसकी जो weaknesses है उनको neglect करके उनकी strengths पे focus करके उसको important feel कराया जाता तो ये ज्यादा वो था. But then this is a drama and ड्रामा. हाँ, और लोग हम कहेंगे आप ड्रामे को इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं. मुझे तो ये मालूम करना है कि हादी का क्या चक्कर है. मुझे पता नहीं क्यों मैंने OST भी देखा. ही सपोज्ड टू बी द हीरो मे बी. हाँ, you see this gray in him. मुझे पता नहीं अभी भी जब जाके वो पूरा उसको ढूंढ रहा है, वो कर रहा है, फिर उसको देख रहा है, या तो ऑब्सेशन आ गई है जो बाद में मोहब्बत में हो जाएगी. ये अजीब सी फील आती है. मुझे नहीं पता, हादी से मुझे एक अजीब सी फील आती है. अच्छा, मुझे अजीब सी फील नहीं आती लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि why is he getting so obsessive. Obviously that is the story, तो वो आगे जाएगी, but जरूरत नहीं है उनको इतना. I think आहिस्ता आहिस्ता he's falling for her. That's what it. हाँ, इतना ज्यादा आप नहीं फील करते किसी के लिए. नॉर्मल बात हो गई, खत्म हो गई. एंड स्पेशली जब आप देख रहे हैं अपनी फैमिली के साथ जा रही है, खुशी खुशी जा रही है, तो then you leave it at that कि अच्छा भाई she's okay. But then going one step further is definitely कुछ है उनके दिल में, कुछ हो रहा है. Yeah. Okay. Next one. मेरे हमसफर इश्किला. मेरे हमसफर. मेरे हमसफर फर्स्ट. राबिया ये कैसे हो गया? चले जी, मेरे हमसफर. ओके, बड़ी कॉन्वर्सेशंस हो रही थी. पर मेरे हमसफर की एपिसोड इतनी मजे की नहीं थी. इट वाज अ वेरी स्लो एपिसोड, थोड़ी सी, और वो मजा नहीं आया जो हमें हर वक्त आता होता है. एंड मैंने ये कहा भी था, क्या ये इख्तिताम है हमारे शॉर्ट लिव्ड रोमांस ऑफ हमजा एंड हाला का. Yes, yeah. ऐसा ही कुछ लग रहा है क्योंकि आगे जाके प्रोमो में तो जो सीन्स हो रहे हैं उसके ऊपर काफी डिस्कशन हो रहे हैं. लोग खुश नहीं है उस सीन से, लेकिन हम प्रोमो की अभी बात नहीं करते. हम पहले इसकी बात करते हैं जो हो रहा है. She fainted again when she saw Khurram. She didn't need to do that because उसने बड़े धड़ल्ले से अम्मा को, शाहजहां को रिप्लाई दिया था कि आपको पता नहीं है हमजा मुझे कभी डिवोर्स नहीं करेगा. तो यहाँ जब वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो रही है तो she didn't need to. You think she should tell him? She should have told him already by now. हमजा बता देना चाहिए था. हाँ, मुझे लगता है कि शायद उसको अब अपना फियर शेयर कर लेना चाहिए. बट यहाँ उसकी गलती है थोड़ी सी, क्योंकि वो छुप छुप के मिलती थी. उसका गिल्टी कॉन्शियस है और उसको ये भी पता है कि शाहजहां इसको जिस तरीके से पोर्ट्रे करेगी या खुर्रम जिस तरीके से पोर्ट्रे करेगा, इसकी बात पे बहुत कम लोग यकीन करेंगे. फिर एक और एंगल भी निकलता है जो मुझे नहीं पता कि हाला सोच रही नहीं सोच रही. वो ये सोचेगी कि अगर मैं ये बताऊंगी तो इनको लगेगा कि अच्छा उस बंदे को भी मैंने ही फोन किया था. तो वो सारी बेसिस, वो सारा पॉइंट जिसकी बेसिस पे ये सब स्टार्ट हुआ था, हमजा ने उसका स्टैंड लिया था, वो डिफीट हो जाएगा. हमजा विल एक्चुअली थिंक दैट यस, रूमी और समीन नहीं, इसी ने उस बंदे को बुलाया था जो आया था, वो वैन वाला. तो इसमें काफी कॉम्प्लिकेशन है. इट्स अ सैड सिचुएशन. और why isn't she calling up Shafaq? Shafaq is the only person who knows a little bit more. नहीं, बट शफक भी तो यही कहेगी कि तुम इन्वॉल्व थी. देखो, इन्वॉल्वमेंट तो थी, उससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना. बट बिकॉज ऑफ दिस थिंग उसका दूसरा जो उस पे इल्जाम है ना, वो सच्चा साबित हो जाएगा. That puts her into a trouble thing. That is the issue and she knows and that's why she's so परेशान. And again, क्योंकि उसका गिल्टी कॉन्शियस है, वो छुप के मिलती थी. दिस इज वे, देखो जब वो हमजा की बेसिस पे जाके अपनी ताई को बोल रही है तो वहां तो वो पॉजिटिव है, कॉन्फिडेंट है, उसको पता है कि जो वो कह रही है वो सही कह रही है. यहाँ तो अपना गिल्ट है कि वो छुप के मिलती थी, झूठ बोला उसने फैमिली से, तो इसलिए वो झूठी साबित हो जाएगी. उसकी ताई तो ऑलरेडी बोलती है झूठी है. तो ऑल ऑफ दिस इज प्लेइंग ऑन हर एंड इट्स अ सैड सिचुएशन. It is a sad situation and there are lots of people involved. Rumi भी involved है, शाहजहां भी involved है. उसने चुपके से बुला के खुर्रम से पूरी बात करी थी. उसने रूमी की बात छुपाई, उसको पता है. रूमी तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलेगी. समीन को तो कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है. समीन is out of the picture. अच्छा, and then unfortunately I'm not happy to see that nosedive in Sameen's life. जो अच्छी खासी वो बेचारी बच्ची खड़ी होती है फिर उसको वापस गिरा देते हैं, खड़ी होती है फिर उसको वापस गिरा देते हैं. I wish parents wouldn't do that. And सोफिया बाय द लुक्स ऑफ इट बड़ी सुलझी हुई खातून लगती है, लेकिन वो जाके वही कर रही है सब कुछ जो उनको नहीं करना चाहिए. और दूसरी बात ये है कि हाला को ना, ये भी तुम सोचो कि हाला
उसको हमने देखा है कि उसको जरूरत है मेच्योर होने की, ग्रो होने की, अपने अंदर स्ट्रेंथ को पैदा करके सही तरीके से हैंडल करने की सिचुएशन। तो उसको एक्चुअली पता नहीं है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करे। सो जहाँ हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हमें कैरेक्टर को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें इतनी समझ भी अभी आहिस्ता आहिस्ता आई है हमजा की सपोर्ट, हालात की पॉजिटिविटी की वजह से। उसमें ये इनबिल्ट नहीं है हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू हैंडल दीज सिचुएशंस। शी नीड्स टाइम टू अंडरस्टैंड। सो इसलिए भी उसको, और उसके पास कोई दोस्त, कोई खैरख्वाह, कोई गाइड करने वाला नहीं है कि उसको बता सके इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, यू नो। Maybe she also thinks कि हमजा कब तक मेरी साइड लेगा, मतलब बिकॉज देखो बचपन में भी दिखाया था, they also say कि झूठ बोलती है, ये कहानियां सुनाती है। सो आई थिंक वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा है वो भी कहीं ना कहीं शो अप करेगा। एंड बाकी यू आर राइट, इट इज अ ट्रस्ट डिसीजन, इट्स नॉट वेरी सिंपल कि सिर्फ खुर्रम की प्रॉब्लम है, इट इज ऑल्सो द ड्राइवर की प्रॉब्लम एंड रूमी की प्रॉब्लम, एंड एवरीथिंग विल कम डाउन टुगेदर। एंड इट्स लाइक आपका एक महल है ख्वाबों का जो वो तोड़ना नहीं चाह रही है, वो तोड़ सकता है किसी भी एक चीज से। सो यस टोटली जी। अच्छा, अब शाहजहां का क्या करें? हम क्या करें, शाहजहां तो खुद कुछ करने वाली है। अच्छा, सो माय क्वेश्चन इज कि राबिया, ओवर द इयर्स पाकिस्तानी ड्रामों में आपके मेल लीड्स जो हीरो जो है वो इवॉल्व हो चुके हैं, एवोल्यूशन आया है फ्रॉम जो अब हम देख रहे हैं। हमजा को भी प्रेम गली में भी हमने देखा और भी ड्रामों में हमने देखा। लड़कियां भी इवॉल्व कर रही हैं, अब काम भी कर रही हैं, दे आर स्टैंडिंग अप, दे रिप्लाई। मदर इन लॉ नहीं इवॉल्व कर रही हैं। The mother-in-laws are mothers-in-law. इवॉल्व कर रही हैं। इश्के लाने जो मदर है वो मदर इन लॉ काम ही किया, and that's why we are giving a big shout out to her every time. But काम हम ज्यादा टॉक्सिक परदेश में भी की थी। परदेश में आई थिंक वेरी रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ मदर इन लॉ। आई थिंक स्टोरी टू स्टोरी डिपेंड करता है, एंड दिस स्टोरी इज अबाउट द इनसिक्योरिटीज ऑफ अ मदर इन लॉ। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट, इसमें एवोल्यूशन आप देख नहीं सकते हैं, नहीं देख सकते। आई एम वेरी सैड, बिकॉज इनका एंड अच्छा नहीं होने वाला है। So it's really toxic, yeah. Someone had written कि ऐसी नहीं होती, we had a discussion and we said कि हाँ, I was saying कि शायद नहीं इतनी ज्यादा, you were saying कि नहीं, मैंने सुना है। Someone had said, I would just like to say कि अगर एक इंसान भी कहता है ना कि उनके साथ ये हुआ है, तो I think we have to respect that, because बहुत दफा ये कहानियां बाहर नहीं आती हैं। बहुत दफा लड़कियां जिंदगियां गुजार देती हैं, लेकिन वो नहीं कहती, वो अपनी घर वालों की रिस्पेक्ट रखना चाह रही हैं, तो आपको शायद नहीं पता चले। आपको कभी कभी अपने करीबी लोगों का भी नहीं पता चलता कि क्या हो रहा होता है। And again, मैंने ये बात बोली थी, इट्स एन एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन रियलिटी, बट इस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। ये एग्जैजरेटेड वर्जन उन्होंने दिखाया ताकि वो उस चीज को और हाईलाइट कर सके और हमें और अटेंशन हम इस ड्रामे को दें। अदर देन दैट मेरे ख्याल में ड्रामे में कुछ खास डिस्कस करने वाला नहीं था। I was just very annoyed कि खुर्रम का कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं पता, कुछ नहीं पता, आप इतने डेस्परेट क्यों गए? आपकी अच्छी खासी बच्ची है, क्यों आप उसको धकेल रहे हैं इस तरह? सेकेंडली, एक पॉइंट विच आई वांटेड टू टच अपॉन इज अगेन वेरी डेंजरस कि वो जो दवाइयां उसको देंगी टू हॉल्ट हर प्रेगनेंसी। We've seen that in other dramas also recently, and we are seeing it again in a country, और मैंने ट्वीट भी किया था राबिया, in a society जब daughters in law पे इतना ज्यादा तशद्दुद होता है, उन्होंने उसको जलाने की भी बात करी है, सब चीजें जो मुझे विदाकर में भी ये हो चुका है पूरा। किसी ने एक्चुअली ये कहा है कि अगर मैं ऑफिस में होता और मेरी बीवी के साथ ये होता, I really wouldn't know, because वो बिलीव भी नहीं करता है हमजा उसको सही तरह, या ट्रिवियलाइज कर देता है जब वो कहती है। So this is something we need to talk about कि you shouldn't be doing this and you shouldn't be giving ideas. अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे डिफरेंट है। आई फील इट इज अ वेरी, मैं समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं कि दिखा रहे हैं फॉर पीपल टू बी केयरफुल, फॉर husbands to know, for family members to know कि ऐसी चीजें हो रही हैं। क्या पता आपकी बेटी के पास हो रही हैं, क्या पता आपको ज्यादा आंखें खोल के रखने की जरूरत है। साइंस देखिए आसपास, अगर आपको लगता है कहीं भी, और मुझे लगता है कि जब कोई इंसान आपके साथ सच्चा नहीं होता या कुछ नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं एक फीलिंग आ जाती है। अगर आपको कोई फीलिंग आ रही है अपनी फैमिली मेंबर्स में किसी के साथ भी ऐसी, और वो आपके साथ कोई भी ऐसी दवाई देने की अटेम्प्ट करते हैं, कुछ मे बी एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, आप उसको चेक करा लीजिए। आई फील यू नीड टू बी इंटेलिजेंट इन हाउ यू डील विद थिंग्स। मेरे हिसाब से ये ड्रामा आइडियाज नहीं दे रहा, ये चीजें ऑलरेडी हो रही हैं, ये ड्रामा बता रहा है, हाईलाइट कर रहा है, और मैं इसको एज अ कॉशन लूंगी, क्योंकि अब थोड़ी सी ऑडियंस भी, मैं ऑडियंस को ये समझती हूँ कि वो इंटेलिजेंट हो गई है। दे शुड बी, ऑल द गर्ल्स सीइंग दिस शुड बी
taking a warning, a caution कि oh we need to be careful about what is happening to us. हमें कौन क्या कह रहा है, हमारे साथ कौन कैसे डील कर रहा है, हमें क्या चीज दी जा रही है, हम अपनी रिसर्च करें, हम अपने प्रिकॉशनरी मेजर्स अपने आसपास रखें, rather than कि बेवकूफों की तरह या मजलूम बस बेजुबान लोगों की तरह हालात में बह जाएं. मैं इस चीज को ऐसे देखती हूँ. All the girls should watch it or all the boys should also watch it? What mothers are capable of doing? बहुत से मर्द हजरात भी देख रहे होंगे तो मे बी, और नहीं भी देखे तो देखो जनरल कॉन्वर्सेशंस जब हो रही होती है ना तो ये बात पहुंचती है, तो बहुत से मर्दों तक ये बात पहुंच रही होगी. मे बी दे विल ऑल्सो, अगर मुझे लगता है 10% men also change और think about कि ओ हमारी बीवी कुछ कह रही थी तो शायद उसमें सच्चाई है. क्योंकि कुछ चीजें बहुत आपको सिमिलर नजर आएंगी जैसे कि होती हैं घरों में. तो मुझे ये लग रहा है कि it's being used as a warning rather than as giving ideas. So I'm two-minded about this, but I hope that you are right, and I hope this is a message people are getting out of it. But I feel this is more a message लड़कियां अपना और कितना ख्याल रखें, कितना मतलब किचन में वही जाती हैं, काम वही करती हैं. अब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, then maybe you should think about where you need to draw the line, and I mean about whether you should be living with your parents or not. अगर आपकी अम्मा आपकी बीवी को जानी नुकसान पहुंचा सकती है, आपके अनबॉर्न चाइल्ड को जानी नुकसान पहुंचा सकती है, so अगर आदमी देख रहे हैं, औरतें देख रहे हैं, then this is the next step. How can you live in this environment? This is my question. Okay. So we move on to Ishkila. We move on to Ishkila. So for me, the heroine of this drama is Aslan's mother. I just love her character. I love her except for one point. एक छोटी सी बात पे मैं थोड़ी सी नाराज हो गई थी उनसे, राबिया, जब उन्होंने कंवल को और उनकी अम्मा को कहा था कि आप लोग घर चले जाएं, मैं ड्राइवर a bit harsh, a bit, नहीं, because उनको तो नहीं पता ना कि असलान का दिल बदल चुका है. Even then, I'm sorry, कंवल was very very बदतमीज, and इतनी जोर जोर से तुम चीख रही हो, तुम्हें पता है एक औरत बीमार है, उसके दिल को हुआ है, तुम प्लीज आप थोड़ा सा तो ख्याल रखिए. आए and then उनकी बहू की फैमिली थी, at the end of the day उनकी बहू की फैमिली है वो. That doesn't make a difference कि बहू की फैमिली आए और इतनी बदतमीजी से चीखो उधार करे और सब कुछ करे. भाई एक मिनट, अजलान ने अस्का को गन पॉइंट पे नहीं रख के बोला आई एम सॉरी. अस्का ने ये खुद अपना एहसान उतारने के लिए किया है. सो ये नैरेटिव कि अजलान गलत है और अस्का के साथ, इट्स नॉट ट्रू. अस्का नहीं करती शादी, छोड़ देती उसको. नहीं, अस्का ने शादी कर ली. कंवल ये कह रही थी कि अब कर ली तो अब डिवोर्स दे दें. कंवल वो बीच में फंसा हुआ है, वो कह रहा है, बट आपको पता है कि पेशेंट है, आप आहिस्ता आवाज में बात कर लें, आप समझे बात को, आप चीज को करें. मुझे तो कंवल बहुत अनरीजनेबल लगी और जिस तरीके से वो बात, कंवल इज अनरीजनेबल, बट द अम्मा कुड हैव हैंडल्ड इट फर्मली एंड टोल्ड देम कि मैं अस्का से बात करूंगी, आप लोग अभी घर जाएं. तब मुझे लगा फर्मली बात की थी. आई थिंक कि आप अपनी बहू के खानदान को इस तरह, उससे आपको बात नहीं, जिस तरह कंवल को नहीं बात करनी चाहिए थी with her like that. Put in a place, otherwise कंवल रुकती नहीं. कंवल needed to be told कि तुम्हारी बाउंड्री से अब तुम इस अंदर नहीं आओ, मैं अपने बेटे और बहू से बात करके फिर तुम्हें हम बताएंगे क्या करना है. मुझे लगा उन्होंने फर्मली बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया था. उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, उन्होंने एक भी बुरा जुमला नहीं उनको बोला, एंड उन्होंने अपने अंदाज से बता दिया कि यहाँ तुम्हारी बाउंड्री है, इससे आगे मत आओ, which needed to be done. I felt that she was a bit rude because I think where her parents were, her mother and कंवल तो थी, कंवल को तो हमने पहले भी कहा कि अस्का should have taken a step. मुझे तो समझ नहीं आता अस्का बोल क्यों रही है. हाँ, अस्का भाभी क्या आप चुप कर जाए, अस्का के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी. Yes, हाँ, मुंह से you are right, और दिखाया उसके पर कैमरा गया, she was about to say something and then she stopped. तो ये है, but otherwise I love the messages that she was giving. दोनों बहुओं के साथ the way she has behaved with them, शनाया के साथ भी, इसके साथ भी, अजलान के साथ the way she has behaved. जिस तरह हॉस्पिटल से कह रही थी कि तुम उसका ख्याल रखो, उसके घर वालों को इज्जत दो, घर आके कहा, and then she said कि अब तुमने कर दिया जो तुम्हें करना है. प्यार से दोनों से पूछा, बात करी. She was disappointed but she kept quiet. So wonderful messages there from the mother-in-law. जी, अब आप आए अजलान और अस्का के ऊपर. I just love the episode. It was such a nice one, endearing, दिल को छू जाने वाली, बहुत ही खूबसूरत थी. थोड़ा सा मुझे शिकवा है कि लास्ट मिनट पे क्यों चीजों को रखा, थोड़ा सा बेहतर कर सकते थे. ये जो मुझे लास्ट मिनट पे एकदम से चीजें चेंज होती है ना, वो मुझे बहुत कॉपी लगता है इंडियन ड्रामो, सोप्स और फिल्म से. तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर हम अपनी ओरिजिनलिटी लाएं, जहाँ पूरे उसको वो करके आ रहे हैं, वो उससे पहले उसको आहिस्ता आहिस्ता
बताता या कुछ करता, निकाह के वक्त एकदम से उसको करने की जरूरत नहीं थी, ये मेरा ख्याल है। बट डिस्पाइट सेइंग दैट, आई लव द होल एपिसोड, आई लव दैट होल सीन, एंड अजान समी खान डिड एन अमेजिंग जॉब जब वो उसको रोकते हैं। वो इतने प्यारे डायलॉग थे, इतने प्यारे डायलॉग थे कि हिचकिचा रहा था और वो बोल रहे थे, एंड द वे ही आई नो कि उन्होंने ऐसे किया, फिर आंखें ऊपर करके उससे बात की अस्का से, तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इस सारे कैरेक्टर को, सारी सीन को हैंडल किया। वो जो पूरा सीन था कि उन्होंने जिस तरह बिठाया भी राबिया कि ही वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द बेड, एंड आपको जब उनकी शक्ल नजर आई तो अस्का की बैक नजर आ रही थी। इट वाज अ वेरी डिफरेंट ओरिजिनल सेटिंग द वे दे हैड डन इट, और वो हल्का सा ब्लर हो रहा था उनका बैकग्राउंड, और बिकॉज वो अपनी उसमें था, वो अपनी बात समझा रहा था उस वक्त, ही वाज टोटली फोकस्ड ऑन व्हाट वी वर आल्सो फोकस्ड ऑन व्हाट ही वाज सेइंग, बिकॉज इफ यू वांट टू से समथिंग। नहीं तुम बोल। ओके, सो मुझे ये बात बहुत खूबसूरत लगी। और अनदर थिंग आई वांटेड टू से वाज कि जो लास्ट किस जब गई थी तो फिर इनका अजान समी खान का इंटरव्यू आया था, एंड आई हैव मेट पीपल हु हैव वॉच्ड दैट इंटरव्यू आफ्टरवर्ड्स विद राबिया एंड सेड कि हमें इश्किला देखना है, जिन्होंने नहीं देखा था। So that interview has got people wanting to watch the drama because of, और मैंने नहीं देखा है अभी तक वो interview, तो मुझे भी देखना है। लेकिन yes, that and the OST is totally did it for। तो एक तो ये था, अब छोड़ा नहीं अस्का ने एंड तक। बहुत अच्छा किया अस्का ने कहा, अगर पास आना है तो यू नीड टू बी क्लियर कि तुम्हारी रीजंस क्या है। आई थिंक दैट्स सच एन अमेजिंग मैसेज फॉर ऑल द गर्ल्स। जब आप मोहब्बत में कॉम्प्रोमाइज करने का सोच लेती हैं कि नहीं, यू हैव टू मेक द अदर पर्सन रियलाइज कि आपकी इंपॉर्टेंस उनकी जिंदगी में है या नहीं है, ताकि वो भी सही डिसीजन ले रहे हैं और आगे जाके गलती नहीं करें। तो वो जमी रही और उनको पता था, लेकिन वो चाहती थी कि अजलान खुद बोले, एंड आई रियली लाइक्ड इट। मुझे बड़ा अच्छा लगा अस्का की ये स्ट्रेंथ, और अस्का की ये बात के वो उसको बोल रही है। What did you think of that scene when she had signed on the divorce? What did you think? And sad scene, I know it was difficult for her, I love the last scene जब वो उसको कहता है कि, तो कहती है आपने खुद से तो सब बोल दिया, मुझसे क्यों नहीं पूछा। तो वो इतने नेचुरल, यही बात का अफसोस होता है कि इतनी खूबसूरत मतलब हैंडलिंग थी, एग्जीक्यूशन थी इन 3 एपिसोड्स की, कि इतना नेचुरल तरीके से वो बोलता है कि मुझे डर लगता है आपसे कुछ बोलते हुए, कि say something that will break my heart, and I don't want to face it, but उसके तो बस अफसोस होता है कि बीच में कहाँ खो गया था इश्किला। I wish that had not happened, खो गया था, अजलान भी खो गया था, एंड आई थिंक इट टुक हिम सम टाइम टू कम। इसलिए वो जो पिछला एपिसोड भी था, इट वाज दैट टॉक बिटवीन हिम एंड डॉक्टर रहमान वाज वेरी क्रूशियल, बिकॉज उन्होंने कहा कि तुम अगर नहीं कर सकते, यू हैव टू बी सर्टेन अबाउट व्हाट यू वांट। तो आई थिंक वो सर्टेनिटी उसी मोमेंट पे आई। कभी कभी हम कुछ करने वाले होते हैं, फिर हम रुक जाते हैं। कल मैंने एक ट्वीट किया था कि व्हाट्सएप, व्हाट काइंड ऑफ व्हाट्सएप मैसेज, कल व्हाट्सएप ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, आर यू द वन हु pushes the button, sends the whole voice note and then doesn't press send on WhatsApp? आप पीछे हट जाते हैं, या आप टाइप करके पूरा लिख के सेंड करके फिर डिलीट करते हैं मैसेज। तो आई थिंक अजलान, I'm the second one. I know you are the second। किसी ने क्योंकि कल लिखा होता कि WhatsApp should delete this delete thing, डिलीट को हटा दो। नहीं प्लीज नहीं तो हाँ नहीं, वो नजर नहीं आना चाहिए। You should not see that Rabia has deleted this message. It should just be deleted, yeah. तो अजलान का भी आई थिंक वो पॉइंट था कि वो यहाँ की अटकी हुई थी बात, या यहाँ की अटकी हुई थी, या दिल में कहीं अटकी हुई थी, he didn't know, तो it came out। I would have liked to see some romantic scenes between the two, थोड़े से। अच्छा है कि ये 6 एपिसोड आराम से निकल सकती थी जो उन्होंने 3 में किया है, तो इसलिए अफसोस है कि इश्किला बीच में गिर गया था। Yes, yeah. Anything else you want to talk about? ज़ैन का आफ्टर में जो सीन दिखाया वो आपको कैसा लगा? वो अपनी अम्मा की गोद में मुझे कुछ वैसे नहीं लगा। मुझसे ऑफिस में भी किसी ने पूछा था, मैंने कहा ज़ैन की कैरेक्टर को इतने बुरे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था कि सॉरी, ज़ैन इज irrelevant फॉर मी। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ज़ैन के होने ना होने से, which is a sad thing। अब मैं क्या करूं? But we didn't. I didn't. We felt for Hassan when he called up Zain and he said कि तुम back out तो नहीं हो गए अपने commitment से। I think that if that had been combined with some romantic moments, तो फिर हमें 2-3 एपिसोड पहले तो वो, because that was like, आप कहते हैं ना कि फाइनल कील जो ठोकी है अजलान के फेवर में, वो वहां ठोकी थी जब उसने कहा कि मैं तो कर दूंगा लेकिन तुम प्रेशर में तो नहीं आ जाओगे। एंड ये अंदेशा हम सबको था
कि वो अपने अम्मा अब्बा के मुझे प्रेशर में अंदेशा नहीं था, मुझे पता था ही विल डू इट अगर वो हाँ हो जाए। बस ये था कि वो स्ट्रेस में जो डाल रहा है उसका को, वो दैट इज फॉर नो रीजन। आई yes रियली लाइक प्रोफेसर रहमान्स कन्वर्सेशन विद अज़लान, इतनी खूबसूरत कन्वर्सेशन थी, इतने खूबसूरत मैसेजेस थे फॉर ऑल द पीपल। बहुत बहुत अच्छी बातें की हैं। दैट वाज अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इश्क़िला कि उसने जगह जगह प्रोफेसर रहमान के थ्रू हमें बड़ा अल्लाह के बारे में मैसेजेस दिए, अल्लाह से रिलेशनशिप के बारे में, इंसानों के साथ ताल्लुकात के बारे में मैसेजेस दिए। आई रियली लव दैट अबाउट द ड्रामा एंड द वे दे डिड इट वाज सो इम्पैक्टफुल। वो प्रीची नहीं लगता था, यू वुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट, यू नो। yes because his personality was such and Nadeem Beg Saab did a wonderful job. I think I loved his whole persona, the way he was with his son and guys there. I think it was also because it वो जिंदगी की जो अजलान अस्का या अजलान शनाया के साथ जो चीजें हो रही थी वो उससे रिलेवेंट हो रहा था। तो इट्स लाइक बहुत सी जगह पे आपको अपनी सिचुएशंस भी नजर आ रही थी कि अच्छा ये हो रहा है तो आपको ऐसे अल्लाह से ताल्लुक रखना चाहिए। तो आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज थी विच I want to appreciate by about Ishqila कि they combined messages with actual life events of the story of the characters, तो वो ज्यादा impactful लगे थे। yes जहां जहां कैरेक्टर बिल्कुल हेल्पलेस हो रहा था वहां वहां he was getting some guidance, he or she was getting some guidance, and Shanaya kabhi helpless nahi hui thi most of the time because she always seemed to have that faith inside her heart. Shania So helpless ye bhi थी। Shania हुई थी she would tell, but she was वो जो सुबह को अपनी तिलावत करती थी और जो पढ़ती थी वो साथ चल रही थी। For Azlan there was a rule. मुझे एक बहुत खूबसूरत डायलॉग आई थिंक पिछले से पिछले एपिसोड में था जब वो कहता है I don't know what he says to Aska, but Aska कहती है कि उसने तुम्हारे लिए दुआ बहुत मांगी होगी शनाया ने। She must have prayed for you, which is why you feel like this today. उसने कहा था कि मेरी भी बहुत सारी ही सेड कि मेरी बहुत सारी बातें और एक्शंस और वर्ड्स गलत थे, तुम्हें दुख दिया होगा और मैं उसके लिए आई एम सॉरी। तो दैट आई लव दैट कि किसी कोई आपके लिए दुआ भी करता है तो भी आप सही रास्ते पे जा सकते हैं। हम कहते हैं ना अम्मी को कॉल करके कि प्लीज दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें ये काम हो जाए। सो दैट्स व्हाट इट वाज। ओके जी, संगे माँ। ओके जी, संगे माँ। बहुत कुछ हो गया और बहुत कुछ नहीं भी हुआ। मुझे लग रहा है शाजी आपकी प्रेडिक्शन सही थी कि वो जरसंगा को ही बचा रहा है। कल मैं सोच रही थी, मैं तो मैसेज भी करने वाली थी पर मैंने नहीं किया। मुझे लग रहा है कि वो जरसंगा को ही बचा रहा है और जिस तरीके से जरसंगा उठी और वो बाहर की तरफ जाती है वो मुझे और कंफर्म कर रहा है कि इट्स जरसंगा जिसने कुछ किया था। लेकिन मुझे लगता है जरसंगा के पास भी एक वैलिड रीजन होगा करने का जो उसने किया है। Of course, Zarsaga is not a murderer by nature or anything. She's a good woman. तो कोई ऐसी कैफियत किसी पे नाजिल अगर हो कि उनको ये करना पड़े, क्यों करना पड़े समझ नहीं आ रहा। बट मस्तान सिंह हीरो I really like that. Did you like the twist जिस तरीके से जिगे की हैंडलिंग हुई? I loved it and मैंने ये सोचा था, मैंने कहा इसने तो माफी दे दी है अब तो कुछ नहीं हो सकता and I'm so glad because फिर मैंने कहा लेकिन अब क्या होगा। I'm so glad they put that in, so like you know they tick off all the boxes, कुछ छोड़ते नहीं है। So yeah, शुरू से एंड तक एक there was a प्रोसेस, मतलब कोई चीज आप उधर से उठा के आगे नहीं कर सकते थे। वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसी तरह होना था जिस तरह हुआ जेके में, क्योंकि अगर वो माफी देता। I really loved it the way they built up the हम like जैसे एपिसोड स्टार्ट हुई थी मैं तो एंशियसली बैठी हुई थी, अच्छा अब क्या होगा कैसे होगा, ओ अच्छा अब यहाँ पहुंच गए, यू नो। तो कंटिन्यूअसली उन्होंने आपकी अटेंशन को पकड़ के रखा हुआ था, वो आपको इधर उधर नहीं जाने दे रहे थे। एंड यू वर स्ट्रेस, यू वर वंडरिंग कि क्या होगा, आपको क्यूरोसिटी भी थी। फिर जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड होना शुरू हुई तो मजा भी आना शुरू हो गया कि ओ अब तो ये हो गया, अब क्या होगा, मस्तान सिंह क्या बोलेगा, मस्तान सिंह मोटरसाइकिल पे जा रहा है। सो आई जस्ट लव द वे दिस वाज डायरेक्टेड, दिस वाज एग्जीक्यूटेड। तो मरजान खान जब जाता है जरगुन्ना के पास, वो कितना खूबसूरत मोमेंट था, यू नो। Yes, yeah, it was very, and वो राबिया जो वो पगड़ी बांधने की कोशिश कर रहे थे उनसे बंद नहीं, उफ, that really pulled at your heart. Amazing ना how you're feeling so much for मरजान खान, आपको उनके लिए एंजाइटी भी फील हो रही थी, सडनली उसके लिए आपको रिस्पेक्ट भी हो रहा था, आप उनके ख्याल भी आ रहा था। I mean, I just love the way संगे माँ made us go through so many emotions last night, you know. Yes, और किस तरह अब जरगुना को शुरू में देखो, जरगुना को अब देखो, उनकी वो अना टूट चुकी है। शी इज अ सॉफ्टर वर्जन ऑफ व्हाट शी वाज बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स कि और लोगों की जिंदगियों में भी दुख है। मे बी शी हैज फाइनली कम आउट ऑफ हर दुख नाउ, क्योंकि अब वो मस्तान सिंह को भी उसने रिलीज कर दिया है। तो ब्यूटिफुल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एंड अब हिलमन
I think this story is also, it is majorly about कि आप जब एक blindingly एक चीज को believe करते हैं तो फिर आप कितने selfish हो जाते हैं, खुदगर्ज हो जाते हैं कि आप उसमें रिश्तों को भूल जाते हैं. क्योंकि उसने जब मस्तान सिंह ने वो कहा, उसने कहा कि नहीं ये तो ज़रगुना और उसकी बेटी ने इससे कहलवाया था. मतलब he then for any reason at all he just wanted कि मरजान खान को पकड़ हो जाए उसकी. जो शुरू का जो था कॉन्वर्सेशन, दैट वाज आल्सो वेरी नाइस. इनके साथ शाहजी के साथ जो थी, वो कह रहा था देखो दे प्रेजेंटेड बोथ आर्गुमेंट्स. हिलमन वाज सेइंग कि देखें आप गलत गवाही नहीं दे सकते और आप क्या व्हाट डिड ही से, नहीं गलत गवाही नहीं, उसने बोला था आके तुम्हें इंसाफ के लिए बुलाएगा, तुम अवॉइड नहीं करो. तो उसने आगे से जवाब दी कि तुम बराबरदारों का हक होता है, तुम इस पे भी करो, अल्लाह तुम्हें बता रहा है. I just love the way कि they were so specific, they use the right messages at that time. हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम अपनी करीबू रिश्तेदारों से दूर हो रहे हो जो तुम्हारे प्यार करने वाले हैं, तुम उसके ऊपर फोकस करो. उन्होंने कहा कि तुम, I forgotten that word but I think you've explained it. तो I'm glad that they are still showing his journey. हमें गुस्सा भी आ रहा है हिलमन पे, बट हमें ये हो रहा है कि when is he going to snap out of it? And I think he needs... अगली एपिसोड का प्रोमो बहुत इंटेलिजेंटली एडिट किया हुआ है कि आपको पता नहीं क्या होता है क्या है, लेकिन ही इज गोना मेजरली रिग्रेट व्हाट ही इज डन, बिकॉज उसको जब सच्चाई पता चलेगी तो वो बहुत उसको रिग्रेट होगा. You know. And I'm so glad, Rabia, the point at which they ended the episode was very, it's उन्होंने बीच में नहीं किया शुक्र because वो cliffhanger, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ छोड़ा है. Yeah. They wrapped it up but they haven't wrapped it up. It was like an anti-climax. जब वो खड़े होते थे ना बीच में मस्तान सिंह and you're thinking अच्छा क्या करेंगे. देखो हर्षाली भी पलट गई. हर्षाली also wanted कि मिल जाए. I was a bit disappointed but मुझे समझ भी आया इसी तरह. और नहीं वो इसलिए भी था कि सरप्राइज बिल्डअप हो, हम समझें कि मस्तान सिंह की बोलेगा फिर मस्तान सिंह कुछ और बोल दे, तो ये भी जरूरी था ये करना. इट्स नॉट जस्ट कि हर्षाली के खिलाफ. और अव्वल खान को पता था, लेकिन अब मरजान खान की वहां भी देखो किसने कहा नहीं कभी कभी और लोगों को बचाने के लिए हमें ये करना पड़ता है. I mean उसको भी पता चल गया था बट नो वन सेड इट. क्योंकि उसने अपनी रिफ्लेक्शन देखी ना कि उसने भी तो जरसंगा को बचाने के लिए क्या किया है, चुप रहा है वो किसी बात पे. तो इट्स ऑल यू रिलेट टू, यू अंडरस्टैंड. आई रियली लाइक इट कि अव्वल खान का जो वो एंगल लेकर आए जिसके थ्रू उन्होंने जरगुन्ना का भी एक बड़ा पॉजिटिव, यू नो, कि वो कितनी सख्त लगती थी लेकिन अंदर से शी हैड अ कैरेक्टर, शी वाज सच अ स्ट्रांग, शी मतलब उसकी कैरेक्टर वाइज जितनी स्ट्रांग औरत है वो, कि उसने वो अपने आप को बचाने के लिए बोल सकती थी, बट उसने उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताया, उसने वो सच्चाई नहीं बताई कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा उन दोनों के दरमियान, यू नो. सो आई रियली लाइक मुस्तफा अफरीदी जो हैं, जो राइटर हैं, कितने इमोशंस के साथ उन्होंने खेला है, हमें जरगुन्ना की एक डिफरेंट साइड दिखाई है. अव्वल खान के बारे में भी हमें हल्का हल्का सा हमारे दिल में अच्छी, यू नो, अच्छे ख्यालात आना शुरू हो गए हैं. एक सवाल कि yes they showed a reason. I mean he tried to explain the reason. अव्वल खान के मैं इसलिए मारता हूँ, बहुत सारे मर्द मारते हैं. मारता नहीं हूँ, उससे मारने का नहीं बताया. क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड होता था इसलिए I used to not be good to her. I was trying to hide this कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, मैं इसको हाइड नहीं. उसने ये बोला था, मुझे ये समझ आई, एंड आई कैन बी रॉन्ग, उसने जब मरजान खान उससे पूछता है तो उसने कहा कि बच्चा ना होने की वजह जरगुन्ना नहीं मैं था, और इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की. लेकिन ये उसकी बड़ाई है कि वो उसने ये बात बता के सबको मुझे शर्मिंदा नहीं किया, और उसने ये इल्जाम अपने ऊपर लेती रही कि मेरे नहीं हुआ. ठीक है, ये बात उसने बोली थी. मारने की बात उसने सिर्फ ये वजह दी थी कि वो मुझे मारता था, so he said ये नहीं था. I thought he also said कि इस वजह से I used to get frustrated and I used to hit her, but I could be wrong, so I'm going to go back and watch it to confirm. Yeah. But I just love the way इतने इमोशंस हैं हर कैरेक्टर. एंड अगेन हर कैरेक्टर, मैं एक और बात भी कहना चाहती हूँ कि देखिए छोटे कैरेक्टर भी हैं, सब्जली का, लेकिन इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. अव्वल खान भी एकदम से इंटरेस्टिंग हो गया. सो एवरी कैरेक्टर हैज अ रीजन, हैज अ वैल्यू, add something to the script, and मजा आता है उनको देखने का. ये नहीं होता कि आपका फोकस सिर्फ 4 कैरेक्टर्स पे है. ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो मुझे लगता है राइटर्स को आगे अपने स्क्रिप्ट्स में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए. एंड उसकी जर्नी भी है, उन सपोर्ट कैरेक्टर्स की जर्नी, अव्वल खान की जर्नी थी जो हमें समझ आई है. उनकी जर्नी पहले से शुरू हुई थी विद नर्स माथा और अभी तक कंटिन्यू हुई है. सब्ज अली की अम्मा का कैरेक्टर कि जैसे तुमने कहा जिरगा कैसे शुरू करी, सो दे स्टार्टेड विद दैट कि सबसे पहले तो वहां रोका उन्होंने कि ये आगे नहीं हो सकता, जबकि सो इट वाज यस इट इज डेल्ट इन एन इंटेलिजेंट वे कि कोई भी चीज रह नहीं रही है. जो आपके सवाल है, जो स्क्रिप्ट्स में प्लॉट स्टार्ट है, तो उन सबको उन्होंने वो रैप अप कर रहे हैं, उन सबका जवाब दे रहे हैं. ये चीज अच्छी लगी. आई लव द वे जो उन्होंने एडिट कराया कि इधर मरजान सिंह, इधर हिलमन, इधर जरसंगा आ रही है. एकदम से आपके ना वो
एक्साइटमेंट होता है आपको, एक्शन होने वाला है, क्या हो रहा है, एंड द वे शी गोज, एंड द लाइन वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो सरसंगा कहती है, जब शहजाद उसको कहती है कि औरतें तो वो नहीं है, तो कहती है इसीलिए तो शायद वो आज तक आधा इंसाफ करते हैं. सो वेरी वेरी नाइसली presented ideas and concepts, and that's all. I don't have much to say. I just have something to say. जो मैंने कल ट्वीट भी किया था. I just want to give a big shout out to Samia Mumtaz for always picking meaningful roles from Dil Na Umeed To Nahi, from right now the character she's doing in Moon Mahara, and also this one and all the other characters she's done, that you can pick up roles that add so much meaning and so much empowerment to females, and she has always done that. So a huge thank you to you. That scene जो तुमने editing की बात करी, जब उसको माफी मिलती है and हमें पता चल जाता है मरजान खान will be free, and then they switch quickly to her praying. सरसंगा is praying at that time, और वो मुझे इतना खूबसूरत लगा कि उन्होंने फौरन वो दिखाया पैरेलल में, and then आगे जाके. So yes, big shout out to Sangema. I think should be your #1 drama this week, Rabia. We'll see. Let's see. Okay, जी, that is all from my side, and I have to rush. Sorry, Shazia. I'm not going to ask you कि आपने कुछ बोलना है नहीं बोलना. अगर आपने बोलना है तो मैं चाह रही हूँ आप बोल लीजिए, हम बंद कर देंगे. Sorry guys, I have an interview. I have 20 minutes to get ready. Okay जी, Allah Hafiz. Take care. All the best. बताइए आपको कैसा लगा हमारा review. Thank you. खुदा हाफिज.